ہفتے کے سرعام میں یوٹیلیٹی سٹورز کے سستے راشن کی دکانوں اور بازاروں میں فروخت کا بردار چال۔ بلک میں یہاں سے مال بیچا جا سکتا ہے یوٹیلیٹی سٹور سے؟ بالکل غلطی ہے۔ قانونی طور پہ آپ ایک آدمی کو اتنا مال دے سکتے ہیں؟ میں صرف آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، جی ہاں یا نا میں جواب دیں۔ اگر آپ یہ کارڈیں بغیر چلائیں گے تو ایسی آنر کریں گے میرا وعدہ۔ جی اگر مجھے بتائے گی کہ آپ نے وہاں پولیس کے ساتھ مل کے فیک قسم کا یہ ڈرامہ کیا سارا۔ ایک ایسا ملک جہاں رمضان میں راشن لینے کے لیے اکٹھی ہونے والی غریب عورتیں ایک دوسرے کے پیروں کے نیچے کچل کر مر جاتی ہوں، ایک ایسا ملک جہاں مائیں اپنے ہاتھوں سے اپنے بھوکے بچوں کا گلا دبا دیتی ہوں کیونکہ وہ ان کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتی، ایک ایسا ملک جہاں کے ریگستانوں میں ایک دو نہیں سینکڑوں بچے بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہوں اور تمام میڈیا کے چیخنے اور سبھی حکمرانوں کے چلانے کے باوجود وحشی بھوک اور دردناک موت کا رقص اب بھی جاری ہو، اس ملک میں ایک غریب کے لیے چینی، آٹا، دال اور گھی کتنا اہم ہوگا کہ وہ غریب ہی جان سکتا ہے یا پھر اس کے بھوک سے بلکتے بچے۔ اور انہی غریبوں کے نام پر 1973 میں یوٹیلیٹی سٹورز متعارف کروائے گئے جن کا مقصد یہ تھا کہ یہاں ملنے والا راشن ملک کے غیر مراد یافتہ طبقے کو بازار کی نسبت سستا فراہم کیا جائے، اور سستا اس لیے نہیں کہ ہمارے کھربوں پتی حکمرانوں نے یوٹیلیٹی سٹورز کے فنڈ میں اپنی جیب سے کوئی پیسے ڈالے تھے، بلکہ یہاں چیزیں بازار سے سستی اس لیے ملنا تھی کہ اوپر کے پیسے آپ کے اور ہمارے ٹیکس سے ادا کیے جانے تھے۔ مثال کے طور پر اگر بازار میں چینی 55 روپے فی کلو ہے اور یوٹیلیٹی سٹور پر 49 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے تو ہر کلو پر حکومت یا یوٹیلیٹی سٹورز کو جو 6 روپے کا نقصان ہو رہا ہے وہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے دیا جانا تھا، اور آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اس عمل کو سبسڈی کہا جاتا ہے۔ لیکن پورا پاکستان گواہ ہے کہ عوام کے پیسوں سے چلنے والے یوٹیلیٹی سٹورز پر کبھی بھی صورتحال ایک غریب کے لیے مثالی نہیں رہی۔ ایک وقت تھا کہ لوگ کئی ہفتے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے، چینی یا گھی کی نئی کھیپ آنے کا انتظار کرتے تھے اور کھیپ کے آنے کے بعد گھنٹوں لائن میں لگتے تھے، لیکن ان کی باری آنے تک یوٹیلیٹی سٹورز کا عملہ اس آٹے، چینی یا گھی کو چھپا چکا ہوتا تھا اور بعد میں اسے اپنے عزیز و اقارب یا پھر مختلف جنرل یا کریانہ سٹورز کو بیچ دیا جاتا تھا۔ آدھا منافع یوٹیلیٹی سٹور کے عملے کا اور آدھا اس جنرل سٹور یا کریانے والے کا۔ اس ملک کے عوام یوٹیلیٹی سٹورز پر اتنا ذلیل و خوار ہوئے کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے یہاں کا رخ ہی کرنا چھوڑ دیا۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جو چند روپے بچانے کی خاطر اپنی عزت نفس قربان کرنے کو تیار تھے، سو یہ سٹورز اب اکثر و بیشتر ویرانے کا منظر پیش کرتے ہیں اور یہاں سستا سبسڈائزڈ راشن بالعموم وافر مقدار میں موجود رہتا ہے۔ کچھ سٹورز مینیجر نے اس صورتحال کا بھی فائدہ اٹھایا اور پہلے کی طرح مختلف سٹورز اور دکانداروں سے گٹھ جوڑ کر لیا۔ اب یہ یوٹیلیٹی سٹورز کا انتہائی سستا مال جس میں غریب پاکستانیوں کے خون پسینے کی کمائی شامل ہوتی ہے دکان والوں کو فروخت کرنے لگے اور دکان والے اسے انہی پاکستانیوں کو مہنگے داموں بیچنے لگے۔ سریام کی ٹیم کو جب اس بے ایمانی اور کارستانی کی اطلاع ملی تو ہم نے اسے بھی منظر عام پر لانے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے اطلاع دینے والے انفارمرز کی نشاندہی پر شہر کے 3 یوٹیلیٹی سٹورز کا انتخاب کیا اور منصوبے کے مطابق یہاں سے تھوک میں آٹا، چینی، گھی اور دیگر اشیاء خورونوش خریدنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ قانونی طور پر یہ سٹورز کسی بھی ایک شخص کو ایک مقررہ مقدار سے زیادہ راشن فروخت نہیں کر سکتے۔ ہمارے انفارمرز کے مطابق چونکہ یہ لوگ لگے بندھے سٹورز والوں کو ہی سامان فروخت کرتے تھے، سو اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ یہ کسی اجنبی پر اتنی جلدی اعتماد کرتے، لہٰذا سریام کی ٹیم کے نمائندوں نے این جی او کا نمائندہ بن کر ان لوگوں سے تھوک کے حساب سے راشن خریدنے کی پلاننگ کی۔ یہاں کی وضاحت ایک بار پھر ضروری ہے کہ قانونی طور پر پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیلے ہوئے 6000 یوٹیلیٹی سٹورز کسی کو بھی ایک خاص حد سے زیادہ اشیاء فراہم نہیں کر سکتے، ورنہ یوٹیلیٹی سٹورز کے قیام کا مقصد ہی فوت ہو جائے، اور اس کیس میں ایسا ہی ہو رہا تھا۔
इस तरह तो गरीब दो तरह से लताड़ा जा रहा था। पहले तो हमारे ही टैक्स के पैसों से इन अशिया को सस्ता किया जाए, फिर वही अशिया यूटिलिटी स्टोर्स की बजाय बाजार से महंगे दामों हम ही लोग खरीदें। इस पहले स्टोर के मैनेजर की तरह दूसरे स्टोर का मैनेजर भी हमारे नुमाइंदों को बाआसानी थोक में चीनी, आटा, घी और दूसरी अशिया बेचने पर आमादा हो गया। कि माल उनके पास इतनी क्वांटिटी में नहीं, आप जब भी देंगे उसके तीसरे दिन आप आके उठाएं। एक आदमी आप आ जाना, एक आदमी ज़्यादा नहीं, माल आएगा फिर उसको पैक वगैरह वो अपने तरतीब से करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो एक दिन पैकिंग नहीं चाहिए, वो अपने दुकान को सेटल गिराएंगे, उसके बाद पैकिंग करेंगे। ये कौन सा वाला चावल है? हमने पर्चा दिया था, पर्चा कहाँ है? बोरा के हिसाब से बनाया था तो इस वजह से बिल कम है, ठीक है। अगर आप बढ़वाओगे तो मजीद बढ़ा देंगे, मैं सही है, मसला नहीं। आपने 38 बैग का बोला था ना, 38 बैग ही। असल जितने आ रहे थे ना क्वांटिटी हमने देखा 38 बैग में, एक बोरा में। अच्छा 38 बैग में 38 आदमी को यानी हर आइटम जो है ना वो 38 है। अब हमें कल, आज का दिन है, नेक्स्ट माल कब देगा? जब फौरन देगा, पेमेंट तो और लेगा? नहीं ऐसा नहीं, आप पेमेंट डाल दीजिएगा फुल, आप जो होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ गाड़ी की पेमेंट मैंने की है। क्या मतलब? पहले मैंने पेमेंट की। अच्छा। तीसरे यूटिलिटी स्टोर से माल की खरीदारी की डील तो फाइनल हो गई, लेकिन पैसे देने या राशन का सामान खरीदने की नौबत क्यों ना आ सकी, ये आप कुछ ही देर में जान जाएंगे। 2 स्टोर से मामलात तय होने के बाद हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि बैक वक्त दोनों यूटिलिटी स्टोर्स पर कार्रवाई कैसे की जाए, क्योंकि एक स्टोर पर सरेआम की टीम के जाने का मतलब ये था कि शहर के बाकी स्टोर्स तक ये खबर जंगल में आग की तरह फैलेगी और वो सब के सब होशियार हो जाएंगे। सो हमने औरंगी टाउन में वाक़ यूटिलिटी स्टोर से सारा सामान खरीद कर अपने पास जखीरा करने और इस सारे अमल की रिकॉर्डिंग महफूज कर लेने का फैसला किया, ताकि बाद अज़ां इस स्टोर के मुलाजमीन मुकर न सकें और हम मुनासिब मौके पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकें। औरंगी के स्टोर से सरेआम की टीम ने 93,000 रुपए का राशन खरीदा, जो हर तरह से गैर कानूनी और खिलाफे ज़ाबिता था, और इस स्टोर के मुलाजमीन का कमीशन मिलाकर मजमूई तौर पर 1 लाख रुपए के करीब रकम इन लोगों को अदा करने के बाद यहाँ से खरीदा गया सामान अपने पास महफूज कर लिया। दूसरी जानिब बाथ आइलैंड पर वाक़े यूटिलिटी स्टोर के मैनेजर से भी सरेआम के नुमाइंदों की डील जारी थी, और जिस रोज यहाँ से भी थोक के हिसाब से राशन खरीदने का सौदा तय हुआ, हमने उसी रोज यहाँ कार्रवाई का फैसला किया। मुख्तलिफ महकमों और इदारों से राब्तों के बाद बिल आखिर क्राइम ब्रांच के अहलकार सरेआम की टीम के साथ कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हुए, और इनके साथ हमने सबसे पहले बाथ आइलैंड पर वाक़े यूटिलिटी स्टोर का रुख किया। हमारा मंसूबा ये था कि जिस वक्त स्टोर के मुलाजमीन हमारे नुमाइंदे की जानिब से खरीदा गया सामान पिकअप में लोड करवा रहे होंगे, ऐन उस वक्त उन्हें पकड़ा जाए, और सरेआम की टीम ने ऐसा ही किया। ये आपने बेचा माल? जी। क्यों? राशन के लिए दिए। 32,000 रुपये का माल आप एक आदमी को दे सकते हैं? जी। कानूनी तौर पे आप एक आदमी को इतना माल दे सकते हैं? मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछा हूँ, हाँ या ना में जवाब दें। नहीं दे सकते तो क्यों दिया आपने? सर यही सिर्फ फिर कोई बात कर रहे हैं। वो कोई जनरल स्टोर वाला है, वो कोई किराना शॉप वाला है, वहाँ ले जाके सामान बेचेगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, वो होगा? नहीं, बात आपकी राइट है, लेकिन मेरी बात अगर राइट है तो आप रॉन्ग हैं। हम दोनों से कोई एक गलत कह रहा है और एक सही कह रहा है ना। या आप ठीक कह रहे हैं या मैं ठीक कह रहा हूँ। और अगर आप गलत कह रहे हैं और अगर आपने गलत किया तो उसकी सज़ा मिलेगी ना आपको, ज़ाहिर है। तो गरीब आदमी का हक है ना बेचारे का यार। रमज़ान में उसको एक एक थैला गरीब लाइन में लगते हैं। हम देखते हैं यूटिलिटी स्टोर्स में जो मुख्तलिफ है, आखिरी वक्त में बंद कर दिया जाता है कि जी नहीं चीनी ख़त्म हो गया है, नहीं जी घी ख़त्म हो गया है, और वैसे जो है ये सुजुकियाँ भर भर के हम बेच रहे हैं। इन साहिब का ये कहना था कि हम इससे पहले मुख्तलिफ NGOs और इदारों को थोक के हिसाब से आटा, दाल, चावल, चीनी और घी वगैरह फरोख्त करते रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्हें इस बात का इख्तियार था, और क्या ये आने वाले से किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट या सनद मांगते थे?
अगर ये सच में कोई नेकी करना चाहते थे तो अपनी जेब से करते। गरीब आवाम के टैक्स के पैसों से सस्ता किया गया सामान मनो टनों के हिसाब से किसी भी ऐरे गैरे को फरोख्त कर देना कहाँ की नेकी है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि राशन के तौर पे जो लोग आपसे लेके जाते रहे पहले, जी। आपको उनके माथे पे लिखा हुआ नजर आया कि ये राशन में बेचेंगे या जनरल स्टोर पे जाके बेचेंगे किसी पे? कोई एक सर्टिफिकेट चेक किया आपने उनसे? देखिए सर, और इस आप चीज़ का- कौन होते हैं किसी सर- को राशन के लिए बेचने वाले? सर, जब इसका- कानून इस बात की इजाजत नहीं देता तो आप कौन होते हैं कि आप बल्क में किसी को चीज फुजू की भर के बेचें आप? क्राइम ब्रांच के अहलकारों ने सरेआम की टीम की जानिब से अदा किए गए 32,000 रुपए हमें वापस दिलवाए और बेचा गया सामान कानूनी कार्रवाई के लिए जब्त कर लिया गया। लेकिन इस सामान की एक और कहानी अभी हमारे सामने खुलने वाली थी। मुल्जिमान और सामान को क्राइम ब्रांच में छोड़ने के बाद हम उरंगी टाउन के यूटिलिटी स्टोर की जानिब रवाना हुए, जहां से तकरीबन 1 लाख रुपए मालियत का राशन हमारे नुमाइंदे पहले ही खरीद चुके थे। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन स्टोर में मौजूद हैं जिनसे हमने ये माल खरीदा था, हमने अपने नुमाइंदों को एक बार फिर इस स्टोर पर भेजा, इस बहाने से कि वो और सामान खरीदना चाहते हैं। और हैरत की बात ये है कि ये लोग और सामान की डील करने को भी तैयार थे। सो जिस वक्त ये लोग हमारे नुमाइंदों से दोबारा सौदा तय कर रहे थे, सरेआम की टीम और क्राइम ब्रांच के अहलकार इनके सर पर थे। सरेआम की टीम और क्राइम ब्रांच के अहलकार इनके सर पर थे। बल्क में यहाँ से माल बेचा जा सकता है यूटिलिटी स्टोर से? पिकअप भर के दी जा सकती है? आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप उस पर जो है वो पिकअप भर के दे दें? नहीं, पिकअप भर के तो हम नहीं देते। नहीं दी कभी आपने? नहीं, पिकअप भर के हमने ऐसी कोई नहीं दी, एक दफ़ा दी है। एक दफ़ा दी है? तो एक दफ़ा कत्ल किया हो, 2 दफ़ा कत्ल किया हो, एक बराबर नहीं है? सही है, क्या सही है? बिल्कुल गलती है। आप मुझे बताएं यार, ये गरीब लोगों के जो बेचारे लाइनों में जी, धक्के खा खा के एक एक पैकेट के लिए जी, तरस रहे होते जी। हैं, उन्हें इस मुल्क में यूटिलिटी का माल मिलता नहीं है, सही। आप पिकअप भर भर के दे रहे हैं। सही। कितने में दिए आपने? तकरीबन इन्होंने कोई पैसे लिए हैं, याद जी नहीं भूल जी गए आप? नहीं नहीं यार रोज़ा ज़्यादा लग रहा है नहीं नहीं, बिल्कुल इन्होंने तकरीबन लिया है 90-95 हज़ार रुपये। 1 लाख रुपए का तकरीबन हाँ, माल आपसे तकरीबन लिया। ऐसे कुछ। वो पिकअप भी सामने लेके आए हैं, हम कहते हैं तो वो आपको दिखाते हैं, लेके आए हैं जिनको ज़रा याद दहानी हो जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे आपको। क्यों किया आपने, ये बताएं? गलती हो गई सर। और आप आज भी देने के लिए तैयार थे। वैसे आप हमें समझाएं, सस्ता क्यों मिलता है? नहीं चीनी का जी। बाजार में और यहाँ पे कितना फ़र्क होगा 1 जी, किलो जी। का? कितना होगा? फ़र्क है काफ़ी। कितना होगा? 1 किलो में कितनी सस्ती मिलती है यहाँ पे? 10-15 रुपए के तो फ़र्क है। बट है ना। जी अब वो अगर कोई यहाँ से ले जाके स्टोर्स पे बेच रहा है, जी। किराने स्टोर पे बेच रहा है, जी। तो गरीब आदमी का हक मारा जा रहा है ना। जी जी जी, सही कह रहे हैं। यहाँ भी सरेआम की टीम की जानिब से रकम वापस ली गई और सामान कानूनी कार्रवाई के लिए जब्त कर लिया गया। लेकिन अभी इस सारी कहानी में ट्विस्ट आना बाकी था और इस ट्विस्ट की तवक्को सरेआम की टीम ने भी नहीं की थी। पैसे पेमेंट वापस करें आपको, या आप कैसा रिलीफ दे रहे हैं? किसने दिए, किसने थे? जिसने पैसे दिए थे वो ले अपने हाथ में। आपने दिए थे ना फिर आपने? हाँ, इन्होंने दिए थे पैसे, इन्होंने दिए थे भाई, ऑन कैमरा कर दे। ये आदमी पहचानते हैं आप इसे? कितने पैसे दिए थे? 93,138 रुपये। कितने दिए थे? अच्छा मैंने दिए तो 97 थे, लेकिन इनका बीच में शायद खांचा होगा। अच्छा 97,000 रुपये दिए थे ना। अब जरा आके रिकग्नाइज भी कर लें, आए जरा इसे 1 मिनट दिखा दें जरा, ये भी कर हामी कर लें बेटा। यही चीज़ें आओ यही चीज़ें दी थी आपने? आटा भी था, चीनी भी थी, शरबत भी था, सब चीज़ें यही थी। साफ बेसन भी था, पूरा देखो तसल्ली से, माल पूरा है आपका। सरेआम की टीम ने एक हद तक अपना काम मुकम्मल कर लिया था। सरकारी और अवामी माल को बेरहमी और चंद रुपयों की रिश्वत की खातिर फरोख्त करने वाले यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन और खरीदे गए सामान को कानून के हवाले कर दिया था। लेकिन ये काम आइंदा ना हो और इस सिलसिले में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान कोई जामे मंसूबाबंदी कर सके, इसके लिए हमने मुतल्लिका फोरम या अफसर की तलाश शुरू की। हमें बताया गया कि अगर ये मामला जोनल मैनेजर के इल्म में लाया जाए तो वो ऐसे इक़दामात की रोकथाम करने के मजाज हैं। सरेआम की टीम अगली ही सुबह
कुरंगी में वाक़ यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के दफ्तर पहुंची, लेकिन जोनल मैनेजर कमाल मुस्तफ़ा हमारे पहुंचने से पहले ही काफी बरहम थे। उन तक हमारी कार्रवाई की इत्तला पहुंच चुकी थी, लेकिन जिस झूठे अंदाज में उसने उन्हें सीख पा कर रखा था। कल जो आपका हुआ, आपने इस तरह किया, हमारे हमसे तो आपने राब्ता ही नहीं किया। खैर जी नहीं, हम तो सर आपके पास ही आए ना अल्टीमेटली। सर हमें पहले वो ऑपरेशन कंप्लीट करना था, फिर अथॉरिटीज के पास आना था कि सर हमने ये किया। मैं नहीं कह रहा, आप जिसके पास आपका फ्री हैंड है, फ्री मीडिया है, पावर आपके पास है, माइक आपके पास है, हम ज़ाब्ते के जो चाहे आप काट दें, जो चाहे कतन नहीं सर, कतन नहीं। लेकिन मैं हर चीज़ में कहता हूँ, हर चीज़ में एक ज़ाब्ता है, कायदा होता है। बिल्कुल होता है। नहीं सर देखिए, हम बिल्कुल ज़ाब्ते की बात कर रहे हैं ना, हम ज़ाब्ते पे आ जाते हैं। जो इन यूटिलिटी स्टोर्स ने किया वो ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी थी या नहीं थी, बस आप बता रहे हैं। नहीं, अगर आप जो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या किया, मुझे नहीं मैं पता, बता देता हूँ सर। मुझे आपने ना मैंने देखा, ठीक है, जो मुझे बताया गया, अगर आप ये कांटे बगैर चलाएंगे सर तो इसको ऐसे ऑन एयर करेंगे, मेरा वादा जी, अगर मुझे बताया गया कि आपने वहाँ पुलिस के साथ मिल के, पुलिस से वैसे मैं अंडर द मतलब मैं वहाँ मौजूद नहीं था, तो आप वहाँ मौजूद थे, पुलिस के साथ मिल के उसको थ्रेटन किया। वो लड़का नमाज़ पढ़ने गया हुआ था मस्जिद, उसका असिस्टेंट वहाँ मौजूद था, तो उसने 150 या 40 पैकेट या 20 पैकेट जो भी थे बहरहाल उसको उसने, उसके बाद आपने उससे कहा नहीं हमारी गाड़ी तक पहुँचाओ। अच्छा, ये नहीं वो कह रहा है कि हमने धमकी देके, आपने धमकी देके प्रेशराइज करके, हाँ फिर सादा ड्रेस में, ठीक है। अच्छा उसका सबसे बड़ा सबूत, खैर इसको बात तो छोड़ दिया। फिर उसके बाद उस गाड़ी में रखवाया गया और फिर आपने उसकी क्वांटिटी भी बढ़वाई दिखाने के लिए, कैमरा हाइड के लिए, हाइड शायद, ठीक है, मैं हो सकता है मैं टोटली गलत हूँ, नहीं ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। सही। आपने ज़ाब्ते के खिलाफ वर्जी, जो मेरी नॉलेज में इस तरह है कि आपने वहाँ पे फेक किस्म का ये ड्रामा किया सारा। जोनल मैनेजर को स्टोर्स के मुलाजमीन की जानिब से एक अजीबो गरीब झूठी कहानी सुनाई गई थी, और वो ये कि सरेआम की टीम ने गन पॉइंट पर यूटिलिटी स्टोर्स का सामान पिकअप में रखवाया और फिर कैमरे लेकर पहुंच गए, ये दिखाने के लिए कि हमने ये माल खरीदा है। ये आकिबत नाअंदेश ये बेहुदा इल्जाम लगाते हुए शायद नहीं जानते थे कि इनसे होने वाली डील्स की एक एक खुफिया रिकॉर्डिंग सरेआम की टीम के पास मौजूद होगी। हमने जोनल मैनेजर को भी ये तमाम रिकॉर्डिंग्स दिखाने का वादा किया ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कमाल मुस्तफ़ा साहिब का ये भी दावा था कि हमने जिन स्टोर मुलाजमीन को गिरफ्तार करवाया है उन्हें पुलिस ने रिश्वत लेकर छोड़ दिया है, जिससे उनकी नज़र में बेचारे स्टोर मुलाजमीन के साथ होने वाली नाइंसाफी दोगुना हो गई है। उन्होंने ये दावा भी किया कि जब्त किए गए सामान में से आधा सामान वापस किया गया है, जबकि बाकी सामान पुलिस एहलकारों ने आपस में तकसीम कर लिया है। ये बात सरेआम की टीम के लिए भी इंतहाई दुख, अफसोस और हैरत का बाइस थी अगर वाकई ऐसा हुआ था। सो हमने यूटिलिटी स्टोर्स के जोनल मैनेजर को यकीन दिलाया कि अगर पुलिस ने ऐसा किया है तो हम उन्हें भी बेनकाब करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन पुलिस एहलकारों को किया था जो ज्यादती करने वाले जाली आमिल पर मुकदमा दर्ज करने के लिए ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की से रिश्वत मांग रहे थे, और उन्होंने इस बात का ख्याल भी नहीं किया था कि इस आमिल को एक मीडिया टीम यानी सरेआम की टीम ने गिरफ्तार करवाया है। उस केस में फर्क सिर्फ इतना था कि रिश्वत का मुतालबा होने पर लड़की ने सरेआम की टीम से राबिता कर लिया था और हमने पुलिस एहलकारों को पैसे देने की खुफिया रिकॉर्डिंग कर ली थी। लेकिन इस केस में यूटिलिटी स्टोर्स के अफसरान और थोक में सामान फरोख्त करने वाले मुलाजमीन इल्जाम तो आयद कर रहे थे, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं था। इसके बावजूद हमने हकीकत तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की ठान ली। हमारे पास सर वो हर एक रिकॉर्डिंग मौजूद है जो उनसे डील करते हुए थी खुफिया कैमरे पे, वो कह रहे हैं ना प्रेशराइज करके, वो मैंने आपको प्रोग्राम्स देखे हैं, वो अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, जो दूसरी बात है कि जब हम पुलिस के साथ गए और थ्रेटन किया, ये जो उनका मौक़िफ़ है वो भी हम आपको बिल्कुल, यानी जब से कैमरा रोल पे आया है उसके आखिर तक पूरी की पूरी टेप में एज इट इज कॉपी करके दे देंगे। उसे दुनिया की किसी लेबॉर्ट्री में आप टेस्ट करवा लीजिएगा कि उसमें कोई कट लगा है, कोई एडिट हुआ है या नहीं हुआ, वो सब सामने आ जाएगा। यहाँ तक कि मुझे ये बताया गया कि आप ये फरमा रहे हैं कि उन बंदों को छोड़ दिया गया, ये रात 2 बजे वहाँ से आए हैं, इनको उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहें, आप सिर्फ दफ़ा बता दें हमें कि किसके तहत हमने मुकदमा दर्ज करना है और कौन मुद्दई बनेगा। हम हमारे बंदे हमारे पास हैं, सामान हमारे पास है, बंदे हमने नहीं छोड़े। सर हमने गुड फेथ के साथ, इस नियत के साथ कि ये काम अगर हो रहा है तो इसको रुकना चाहिए, हमने 2 लोगों को पॉइंट आउट करके सिर्फ एक मिसाल के तौर पर, इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे हमें कोई खदशा था या डिपार्टमेंट पे हमने कोई सवालिया निशान उठाया। अब तक मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि हमने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया पूरे डिपार्टमेंट पे या आप पे,
جن دو لوگوں کو پکڑا ہے ان کی ہم بات کر رہے ہیں, اس پہ ہم قائم ہیں, اس پہ ہم قائم رہیں گے, اس کے ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں. پولیس نے اگر کچھ کیا تو ہمارا اگلا مرحلہ پولیس ہوگی. بس ایک اور افسوسناک پہلو یہ تھا کہ الزامات کی بوچھاڑ میں یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کی بددیانتی پسے پشت چلی گئی تھی, لیکن حقائق کا منظر عام پر آنا بہرحال ضروری تھا. کیا واقعی پولیس نے رشوت لے کر ان ملازمین کو چھوڑا تھا؟ کیا واقعی ضبط کیا گیا آدھا سامان کسی سرکاری مالخانے کی بجائے پولیس اہلکاروں کے گھروں میں پہنچ گیا تھا؟ اس بات کا ثبوتوں کے ساتھ پتہ لگانے کے لیے ہمیں کوئی راستہ نہیں سوجھ رہا تھا. کافی سوچ بچار کے بعد بالآخر سریام کی ٹیم نے ایک منصوبہ ترتیب دیا. ہم نے اپنے نمائندے دوبارہ انہی یوٹیلیٹی سٹورز پر بھیجنے کا فیصلہ کیا, یہ ریکارڈ کرنے کے لیے کہ کیا گرفتار ہونے والے ملازمین واپس اپنے سٹورز پر کام کر رہے ہیں یا ابھی تک پولیس کی تحویل میں ہیں. پلان کے مطابق ہمارے نمائندے اس دن کا اخبار بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے تاکہ ایک ہی ریکارڈنگ میں اخبار اور اس ملازم کا چہرہ ریکارڈ کر لیا جائے, اس لیے کہ بعد میں پولیس اہلکار یہ بہانہ نہ کر سکیں کہ یہ ریکارڈنگ پرانی ہے. ہم نے بات ہائی لینڈ اور اورنگی ٹاؤن کے سٹورز پر یہ ریکارڈنگ بیک وقت کی اور دونوں جانب سے موصول ہونے والی ویڈیوز دیکھ کر ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی, کیونکہ ان سبھی ملازمین کو رہا کر دیا گیا تھا جنہیں ہم نے ایک روز پہلے گرفتار کروایا تھا. ایک لمحے کے لیے تو شرمندگی اور غصے کے ملے جلے اثرات کا غلبہ ہوا, لیکن پھر ہم نے پولیس اہلکاروں کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا. اب ہماری حکمت عملی یہ تھی کہ ایف آئی آر کی کاپی لینے کے بہانے کرائم برانچ میں متعلقہ اہلکاروں سے ملا جائے اور باتوں ہی باتوں میں ان سے پوچھا جائے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے گرفتار ہونے والے ملازمین کہاں ہیں. ہمیں توقع تھی کہ ان کا جواب یہ ہوگا کہ ملازمین ان کی تحویل میں ہیں, کیونکہ اپنے حوالات نہ ہونے کے باعث کرائم برانچ گرفتار ہونے والے ملزمان کو متعلقہ تھانوں کے حوالات ہی میں بند رکھتی ہے. جیسے ہی ہمیں یہ کہا جاتا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے گرفتار ملازمین ہماری تحویل میں ہیں, ہم انہیں اسی دن کی وہ ریکارڈنگ دکھاتے جس میں ملازمین اپنے اپنے سٹورز میں کام کر رہے تھے, اور پھر ان پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی کوشش کرتے, کیونکہ اگر ان لوگوں نے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر واقعی ان لوگوں کو رہا کر دیا تھا تو اس کا یقینی مطلب تھا کہ اس عمل میں کوئی لین دین یا بددیانتی ضرور شامل ہے. ہم سٹور ملازمین کی خفیہ ریکارڈنگ کے ساتھ انتہائی آرام سے کرائم برانچ میں داخل ہوئے. متعلقہ پولیس افسر کی فرمائش پر کیمرہ بھی بند کر دیا, لیکن صرف اسے دکھانے کی حد تک. گفتگو کا آغاز ہوا, لیکن بات جب وہاں تک پہنچی کہ گرفتار ملازمین کہاں ہیں تو پولیس افسر کے جواب نے ہماری توقعات یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے خدشات پر پانی پھیر دیا. اچھا, اس میں دو آپشن ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ویسے تو وہ تیار ہے لیکن وہ کرے کہ یہ آج یا کل یا پرسوں. ایک تو وہ مدعی بن کے ایف آئی آر کٹوا دے. ایک یہ ہے کہ ہم مدعی بنے, ہم نے اس پہ بھی لیگل اوپینین لیا اس لیے نا کہ ہم نے اس سے خریدا نا مال, ہماری اس کی مگر وہ پھر وہی بات آتی ہے نا. اس طرح میں نے یہ بھی کیا تھا, آدھی پہ کل بیٹھے تھے, یہ بھی سوال کیجیے نہیں ہو سکتا وہ بندہ کر سوال میرا ہے تو میں نے ہی ایف آئی آر کٹا. بندے ہیں سر, بندے میں نے آدھی بھائی کو بتایا تھا نا کہ بندوں کو کسی دوست کے اس پہ ہینڈ اوور کر دیا تھا. ان کو میں نے بولا تھا جس طرح وہ کل بندہ ہمیں کہتا ہے کہ ہاں میں اس طریقے سے ایف آئی آر کاٹتا ہوں, بندے میں پھر بندے آ رہے ہیں جو بندوں کا بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں سر. میں نے کل ان کو بولا تھا نہیں کرا میرے, میں نے ان کو بولا جس ٹائم آپ بولو نا کہ یہ کام اب یہ اوکے ہو گیا, میں نے جانا ہے جیسے اسٹور سے اسلام آباد کرنی ہے اس کو گاڑی میں کر لیا. انہوں نے ہمیں واضح طور پر بتایا کہ انہوں نے شخصی ضمانت پر ان لوگوں کو رہا کر دیا تھا, کیونکہ قانون کے مطابق وہ تب تک ان پر مقدمہ درج نہیں کر سکتے تھے جب تک یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا کوئی مجاز افسر اس مقدمے کا مدعی بننے کے لیے تیار نہ ہو. کیونکہ یہ مال سرکار میں خیانت کا معاملہ ہے, سو متعلقہ سرکاری افسر ہی مقدمہ درج کروا سکتا ہے. انہوں نے یہ ضمانت بھی دی کہ جب بھی مدعی مقدمے کے اندراج کے لیے تیار ہو جائے گا وہ اسی وقت دوبارہ ان لوگوں کو گرفتار کر لیں گے. ہم جو بھرپور تیاری کے ساتھ کرائم برانچ میں داخل ہوئے تھے, اس خیال کے ساتھ واپس آ گئے کہ ہم ایک بار پھر یوٹیلیٹی سٹورز کے زونل مینیجر کے پاس جائیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ پولیس اہلکاروں کو غلط ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہ کہ زونل مینیجر اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کٹوانے کی حامی بھر لیں. کیونکہ اگر ان پولیس والوں نے ملازمین کو واقعی پیسے لے کر چھوڑا ہوگا تو وہ کبھی بھی ایف آئی آر درج نہیں کریں گے.
सो अगले रोज सरेआम की टीम एक बार फिर कराची के दूसरे कोने पर वाक़े यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पहुंची। सर कल ये तय पाया था बेसिकली कि हम जो इब्तदाई तौर पे पुलिस का रोल है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। हमने कहा कि ठीक है, हम यूँ करेंगे कि हम उनकी रिकॉर्डिंग्स करते हैं और हमने वो रिकॉर्डिंग्स की, हमारे पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। हम आपको दिखाते हैं कि अखबार हमारा बंदा साथ लेके गया हिडन कैमरे पे, अखबार की डेट से हमने उस बंदे को काम करते हुए दिखाया। हमारा आइडिया ये था कि हम जाके उनसे दोबारा ऑन कैमरा पूछेंगे कि सर वो बंदे कहाँ हैं, तो ज़ाहिर कुछ बोलेगा कि जी मैंने फ़लाँ थाने में रखवाए हैं या फ़लाँ हवालात में हैं या मेरे पास ही हैं। उसके बाद हम उसको ये रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, उसकी क्लास लेंगे। जब हमने उनसे ऑन कैमरा पूछा कि सर वो बंदे कहाँ हैं, तो उसने कहा सर वो इकरार में बात की है, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है कि वो हमें चूँकि बेल्ट का ख़तरा होता है तो हमने उनको रिलीज़ कर दिया है, लेकिन जब आप FIR के लिए मुद्दई ले आएंगे मैं दोबारा अरेस्ट कर लूँगा उन्हें। वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी गारंटी कि मैं उनको कैसे लेके आता हूँ, या मुझ पर छोड़ दें, आप मुद्दई लेके आएँ आप। और मुद्दई हमने कहा हम बनते हैं, उसने कहा नहीं, मुद्दई बनेगा या तो इनका कोई सीनियर या इन्हीं की यूटिलिटी, क्योंकि वो ज़ाहिर सरकार का माल है और उसी पे मुकदमा हो सकता है। हमने उन्हें गुज़श्ता रोज की सरेआम की कारगुजारी और क्राइम ब्रांच में होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया और ये भी बताया कि अगर वो अपने इदारे के मुलाजमीन के खिलाफ मुद्दई बनने के लिए तैयार हो जाएं तो शायद पुलिस एहलकारों की मुबैना रिश्वतखोरी की हकीकत वाज़ेह हो सके, लेकिन उन्होंने एक दूसरे ऑप्शन का इंतखाब किया। आप FIR कटवाएं, अगर उसने उनसे पैसे लिए हुए हैं तो उसूली तौर पे तो उसे FIR नहीं काटनी चाहिए। हम सामान भी पूरा फ़र्द में लिखवाएंगे जो उनकी कानूनी दस्तावेज़ होगी, बंदे भी उनके पास होंगे कानूनी तौर पे, FIR भी होगी अगर आप मुद्दई बनने के लिए तैयार हैं। अगर FIR कटवाने की बात है, मैं FIR करने को तैयार हूँ और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए किसी के साथ जो तलफी ना हो, मकवाना कार्रवाई करने की इजाज़त अगर हो तो पहले मकवाना कार्रवाई करके FIR कटवाते हैं। ठीक है। सरेआम की टीम ने जब हस्बे वादा उन्हें यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन से होने वाली डील की रिकॉर्डिंग्स दिखाई, शायद तब उन्हें एहसास हुआ कि हकीकत वो नहीं थी जो यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन की जानिब से उन्हें बताई गई थी। देखो मैं यही कहता हूँ, ये आदमी ये ना आपका स्टोर का, मैं इसको पहचानता नहीं, मतलब तो आपका एरिया है ना, हाँ ये औरंगी टाउन रियाज ये है, हाँ। वल्लाह अलम बस बहरहाल अगर होगा तो होगा कहीं जैन होगा, नहीं अभी भी स्टोर पे काम कर रहा है वहाँ। हाँ होगा। इसमें सर हर जाविया हर एंगल नज़र आ रहा है, कहीं को बंदा पिस्टल के साथ नज़र आए, कहीं को बंदा नहीं इसकी फोर्सफुली खड़ा है, नहीं सब चारों तरफ कैमरा घूम रहा है। यही लोग तो मरवाते हैं जो बीच के होते हैं ना, वो लालच दे के गरीब लड़के हैं, 20-25 हज़ार रुपये का लालच है, इन्होंने कर दिया। सच को तलाश करने, सच दिखाने और सच को साबित करने की सरेआम की तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनकी जानिब से एक इंतहाई दिलचस्प मगर तकलीफ देह बात की गई। उनका कहना था कि उन्हें तो किसी ने ये भी कहा है कि स्टोर मुलाजमीन से पुलिस एहलकारों ने जो रिश्वत ली है उसमें सरेआम की टीम का भी हिस्सा है। मेरे किसी बंदे ने बात बताई है जो आप ही की कि यार क्राइम वालों का, ये हमारा मीडिया वालों को तो खुद उनसे तय होता है कोई रिश्वत होगा, ऐसी बातें होती सही हैं, बता रहा हूँ ऐसी मैं, बातें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं कह रहे हैं मीडिया वालों का तो हमारा थाने के साथ तय होता है। वो रिश्वत जो जोनल मैनेजर साहब और उनकी टीम के अपने मुताबिक 40,000 से ज्यादा नहीं थी। अब अगर एक लम्हे के लिए ये मान भी लिया जाए कि पुलिस वालों ने 40,000 लेकर मुल्जिमान को छोड़ा और उन 40,000 में हमारा हिस्सा भी तय था, तो मतलब हमारे हिस्से में ज्यादा से ज्यादा आधे पैसे आए होंगे, यानी 20,000 रुपए। अब ड्राइवर, कैमरामैन, ऑडियो इंजीनियर, प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर, इन्फॉर्मर्स और एंकर को मिलाकर कम से कम सरेआम की टीम के 10 लोगों ने तो ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया होगा, मतलब सबके हिस्से में ज्यादा से ज्यादा 2-2 हज़ार रुपए आए होंगे। अब इल्जाम लगाने वाले इंसान को शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि सरेआम की टीम ने इस प्रोग्राम में चंद यूटिलिटी स्टोर्स में होने वाली करप्शन को बेनकाब करने के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए का तो सामान ही खरीदा था, और तब तक हम ये भी नहीं जानते थे कि हमें हमारे ये पैसे वापस मिलेंगे भी या नहीं। सरेआम की टीम पिछले 2.5 वर्षों में पाकिस्तान में इसी रिवायत को परवान चढ़ाने के लिए जान मार रही है कि मंतिक और सबूत के बगैर किसी पर इल्जाम तराशी ना की जाए। ये बात रिकॉर्ड पर है कि सरेआम की टीम ने आज तक
کوئی ایک ایسا پروگرام نہیں کیا جس میں ملزم کے خلاف واضح اور ناقابل تردید ثبوت نہ ہو، مگر ہم معاشرے کے جن مکروہ کرداروں کو بے نقاب کرتے ہیں وہ ایسے کسی اصول کو تسلیم نہیں کرتے جس کے خلاف ہم مہینوں کی محنت کے بعد مکمل ثبوتوں کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں۔ وہ ہمارے بارے میں محض منہ پھاڑ کر کہیں بھی کچھ بھی بول دیتا ہے کیونکہ اس کا 2 نمبر کا دھندا ہماری وجہ سے چوپٹ ہو جاتا ہے، مگر سریام کی ٹیم رکنے والی نہیں۔ آپ لوگوں کو یہ سب بتاتے رہنا ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ کا یقین اور اعتماد ہمارے ساتھ ہے تب تک ہم ہر الزام اور ہر دشنام کے تیروں کو اپنے سینے پر جھیلیں گے اور انشاءاللہ آخری سانس تک کلمہ حق کہنے سے باز نہیں آئیں گے۔